بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ہاجرہ مسرور کا لکھا ہوا افسانہ چراغ کی لو۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح اس کے اہم کردار۔ سب سے پہلا کردار ہے اچھن، دوسرا کردار ہے اس کا باپ جو کہ ایک امیر آدمی کی دکان پر منشی کا کام کرتا ہے، تیسرا کردار ہے وہ امیر آدمی جس کی دکان پر اچھن کا باپ منشی کا کام کرتا ہے، اور تیسرا کردار ہے اچھن کی ماں جو کہ مر چکی ہے۔ اچھن بہت ہی بیمار، کمزور اور غریب سی لڑکی ہے جس کو ٹھسکے دار کھانسی، وہ کھانسی جس میں ہچکیاں بھی آتی ہیں، عام طور پہ ٹی بی وغیرہ کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی کھانسی آتی ہے، اور ہلکا ہلکا بخار بھی ہے۔ خوف اور وہم میں بھی مبتلا ہے۔ اس کو سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ڈھانچے، لاشیں، مردے دکھائی دیتے ہیں۔ اچھن کا باپ کسی امیر آدمی کے ہاں منشی ہے اور اس کی تنخواہ صرف 10 روپے ماہانہ ہے۔ ایک ایسا منشی جس کے مالک نے کبھی اس کی تنخواہ نہیں بڑھائی۔ افسانہ شروع ہوتا ہے، شام کے وقت اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اچھن نے نظریں پھرا پھرا کر بغیر پلستر کی دیواروں کو دیکھنا شروع کیا، جو اس اندھیرے کی وجہ سے اور زیادہ ڈراؤنی ہوتی جا رہی تھی۔ جب اندھیرے اور تنہائی میں اس کا جی گھبرانے لگا تو وہ کھانستی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچھن کو اپنے باپ کا انتظار تھا جو کام پر سے آ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ نہ جانے کہاں بیٹھ رہے ابا، یہ خیال نہیں آتا کہ اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا میرا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے رونے لگے، لیکن اس سے رویا بھی نہ گیا۔ اچھن نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ یوں نظر آنے لگا جیسے سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے ڈھانچے سامنے کی اندھیری کوٹھری سے نکل کر سارے گھر میں گھوم پھر رہے ہوں۔ اس کے ذہن پر ان ڈھانچوں کی ہڈیوں کی چٹخ اور نئے سفید کپڑوں کی مدھم کھڑکھڑاہٹ اس طرح چھا گئی کہ اس نے آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ یہ تھا تو اچھن کا وہم ہی، کیونکہ کچھ دنوں سے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی بہت کمزور ہو گیا تھا، تو اس کو دن دوپہر میں بھی یہی وہم ہوتا تھا۔ جدھر بھی دیکھتی تھی یہی لگتا تھا کہ کوئی سفید سفید کپڑوں میں لپٹا چلا آ رہا ہے، بالکل اسی طرح کے کپڑے جو اس کی ماں کو مرنے کے بعد پہنائے گئے تھے۔ دروازہ مانوس طریقے سے کھلا اور بند ہو گیا۔ اچھن نے خوف سے مری ہوئی آواز میں کہا، کون ہے؟ یہ اچھن کے باپ کی آواز تھی۔ کہاں تھے ابا؟ میرا دل اکیلے میں گھبرا رہا تھا۔ اچھن کے باپ نے کہا، ذرا کام سے گیا تھا، تو نے چراغ کیوں نہیں جلایا؟ اچھن نے کہا، دیا سلائی نہیں تھی۔ یہ لو دیا سلائی۔ باپ نے جیب سے دیا سلائی نکال کر ایک بیڑی سلگائی تو دیا سلائی کی روشنی میں اس کا چہرہ بہت ہی خوفناک سا نظر آیا۔ بکھری ہوئی داڑھی، ہونٹوں پر اوندھی ہوئی مونچھیں اور پیشانی پر لکیریں ہی لکیریں اور ابلی ہوئی آنکھیں۔ اچھن کھانستی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ بیڑی کے دھوئیں سے اس کا دل خراب ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بیڑی نہ پیو ابا۔ اس بات پر باپ کو بہت غصہ آیا کہ جب سے بیڑی کا بنڈل 6 پیسے کا ہو گیا تھا وہ تمام دن اور رات میں صرف 4 بیڑیاں ہی پیتا تھا۔ اس کا دل تو بہت چاہتا تھا لیکن وہ اپنا جی مارتا اور سخت محنت کرتا، اور اس وقت بیٹی نے حکم لگا دیا کہ نہ پیو۔ اچھن کے باپ نے کہا، تیرا جی تو ہر بات پہ خراب ہوتا ہے، کچھ دماغ چل گیا ہے تیرا۔ اچھن بغیر کچھ کہے اٹھی، دیا سلائی لی اور اس نے چراغ جلایا۔ چراغ جلانے سے گھر میں معمولی سی روشنی ہوئی، اتنی کہ بمشکل سے کچھ دکھائی دیتا تھا۔ اچھن دیا سلائی کی ڈبیا مٹھی میں دبا کر، آنکھیں گھما گھما کر چراغ کی ٹمٹماتی ہوئی لو کو دیکھنے لگی۔ اچھن کے باپ نے بیڑی چارپائی کی پٹی پر رگڑ کر بجھا دی اور اسے دوبارہ پینے کے خیال سے اپنے کان پر جما کر رکھ لیا، اور اچھن کی طرف دیکھا، اسے جیسے دھچکا سا لگا۔ چراغ کی اتنی کم روشنی میں وہ اس طرح کھڑی ہوئی بڑی خوفناک لگ رہی تھی۔ ہڈیوں پر لپٹی ہوئی سیاہ کھال، الجھے الجھے سے بال، کھلے ہوئے ہونٹ اور پھری ہوئی پتلیاں۔
बस ऐसे कि जैसे वो दीवार से टेक लगाकर मर गई हो। अभी दूसरा ही तो साल था कि अच्छन की मां को भी बिल्कुल इसी हालत में बिस्तर पर पड़े देखा था और वो मर चुकी थी और उसकी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत थी। उसको देखकर वो बजाय रोने धोने के उसे उसके कफन की फिक्र पड़ गई, क्योंकि मरने के बाद अब अच्छन की मां को कफन चाहिए था। थान से उतरा हुआ गजों नया कपड़ा। बेशक वो सारी जिंदगी अच्छे लिबास को तरसती हुई मर गई, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है। गरीबों को अमीरों की बराबरी करने का एक ही तो मौका मिलता है, और वो है मरने के बाद, जब कफन की बारी आती है। और असल बात तो यह है कि गरीब पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो मरने के बाद अमीरों की बराबरी कर लें। अच्छन का बाप सोच रहा था कि बेशक सारी जिंदगी वो बेचारी फटे पुराने कपड़ों में फिरती रही, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि मरने के बाद उसकी लाश बगैर कफन के ही कब्र में रख दी जाती। अच्छन का बाप तमाम जान पहचान वाले लोगों के पास गया कि कहीं से इतने रुपए का इंतज़ाम हो जाए कि कफन ख़रीदा जा सके, लेकिन ना हो सका। उसकी जान पहचान वाले भी तो आखिर उसकी तरह के ही गरीब लोग थे। आखिर वो सब की तरफ से मायूस होकर अपने मालिक के पास गया, जिसकी दुकान पर वो 10 रुपये महीने के बदले काम करता था। वो 10 रुपये महीने के बदले सुबह से शाम तक उसका हिसाब किताब लिखा करता था। उसने अपनी उलझी हुई मैली दाढ़ी को आंसुओं से भिगोकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक, मेरे घर में बेकफन की लाश पड़ी है। और मालिक ने तरस खाकर उसको 25 रुपये दे दिए और कहा, ये मुंशी जी अल्लाह के घर का काम है, कर्ज नहीं लो, ये रुपए अदा करने की फिक्र ना करना। इस तरह रोटियों को तरसती, कपड़े को बिलकती और हकीम साहब का नुस्खा पीने को सिसकती हुई अच्छन की माँ एकदम 25 रुपये का खर्च करवाकर ज़मीन के नीचे जा छुपी। अब वो अच्छन के लिए फिक्रमंद था। माँ के मरने के बाद ना जाने उसे भी क्या होता जा रहा था। दिन ब दिन कमज़ोर ही होती जा रही थी। वही माँ की तरह ठुसकेदार खांसी, हल्का हल्का सा बुखार, इधर पड़ी है कभी उधर पड़ी है। गरीब बाप इसकी हालत को समझता तो था, मगर वो इलाज क्या खाक कराता। ज़्यादा से ज़्यादा वही खैराती हस्पताल की दवाएं, जिनमें दवा तो बराए नाम ही होती है, हाँ पानी ही पानी होता है। सरकारी अस्पताल में दी जाने वाली दवाएं उल्टा नुकसान ही करती हैं। जब वो अच्छन की माँ के लिए कुछ ना कर सका तो अच्छन के लिए कहाँ से डॉक्टर पकड़ लाता। पहले भी उसकी तनख्वाह 10 रुपये थी और अब भी उसकी तनख्वाह 10 रुपये ही थी। रुपए की कीमत बाज़ार में पहले से कम हो गई थी। महंगाई इंतहा को बढ़ चुकी थी, मगर दुकान का पुराना मुंशी उतना ही सस्ता था जितना 20 साल पहले। दुकानदार दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। मामूली से मामूली दुकानों के मुलाजमों की तनख्वाहों में भी इजाफा हो गया था, यहाँ तक कि बोझ उठाने वालों ने भी अपनी मजदूरी बढ़ा दी थी, लेकिन उसकी तनख्वाह आज भी उतनी ही थी। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि वो मालिक से साफ कह दे कि मेरी भी तनख्वाह बढ़ा दो, लेकिन उसके मालिक ने पहले ही इस ख्याल को शायद जानकर हर वक्त सुनाना शुरू कर दिया था कि मुंशी जी, बुढ़ापे से तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अब घर बैठो नौकरी छोड़कर। मुझे मुंशियों की कोई कमी नहीं है, मैं तो तुम्हारे पुराने होने का ख्याल करता हूँ, समझे। ये सुनकर और भी परेशान हो गया कि कहीं इन 10 रुपयों से भी ना जाता रहे। अच्छन दिन ब दिन सूखती जा रही थी, इसलिए वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद था। पास पड़ोस वाले कहते कि मुंशी जी, जब लड़की को खिला पिला नहीं सकते, बीमार है, 2 कौड़ी की दवा नहीं दे सकते, तो अपने घर बार का कर दो, इसकी शादी कर दो, खाए पिएगी तो खुद ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन मशवरा देने वाले ये सोचते ही ना थे कि गरीब की लड़की गरीब के घर ही जाएगी। उसकी माँ भी तो शौहर वाली थी, उसने क्या सुख पा लिया। अचानक अच्छन के बाप को ख्याल आया कि कहीं वो उसके बीड़ी पीने के बारे में तो इतनी फिक्रमंद नहीं हो गई। उसने कहा, अच्छन मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा, इस तरह क्यों खड़ी हो। अच्छन ने कहा, कुछ नहीं अब्बा, मैं सोच रही हूं कि चिराग की लौ बढ़ा दूं। अच्छन के बाप ने सोचा कि सचमुच अच्छन का दिमाग चल गया है। अंधेरे को रोशनी में तब्दील करने का ख्याल उसके नज़दीक पागलपन था, मगर आखिर क्यों? क्योंकि 10 रुपये महीना तो उसकी तनख्वाह थी, जिसमें बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था।
चिराग की लो बढ़ाएगी तो उसमें तेल ज़्यादा लगेगा, और तेल ज़्यादा लगेगा तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अच्छन के बाप ने कहा, कब से कह रहा हूँ तेल पर कंट्रोल है, और तू है कि रोज़ बरोज़ लो बढ़ाने की जिद किया करती है। अच्छन ने कहा, तो क्या फ़ायदा ऐसे उजाले का, दुकानदार इतना भी तेल ना दिया करे, इससे तो अंधेरा ही पड़ा रहे, नाम तो ना हो चिराग जलने का। अच्छन के बाप ने ज़रा तेज़ आवाज़ में कहा, फ़ायदा वायदा कुछ नहीं मालूम, बस इतना ही तेल मिलेगा कि चिराग जलता रहे। अच्छन ने कहा, चाहे रोशनी ही ना हो। अच्छन के बाप ने कहा, हाँ। अच्छन ने कहा, मेरा तो जी उलटता है ऐसे उजाले से। अच्छन के बाप ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो बेटी के बात बात में जी घबराने से नाराज़ हो गया हो। अच्छन मायूस होकर अपनी चारपाई पर पांव लटकाकर बैठ गई। उसे अपने अब्बा पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो इस बराए नाम रोशनी पर कनात क्यों करते हैं। मट्टी का तेल उसे रोज़ाना क्यों नहीं मिलता, जबकि गली की नुक्कड़ वाले खूबसूरत 2 मंजिला घर में तमाम रात बड़ी बड़ी लालटेनों की रोशनी होती रहती है। उसका दिमाग ये सोच ही ना सका कि अगर तेल लड़े भड़े मिलने भी लग जाए तो उसके लिए 2 पैसे रोज़ किसके घर से आएंगे, जबकि उसके बाप को सख्त मेहनत की कीमत सिर्फ इतनी ही मिलती है कि वो जिए तो क्या सिर्फ जीने की नकल उतार सके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्याह ताक में रखा हुआ चिराग, जिसकी मध्यम रोशनी पर चारों तरफ से अंधेरा फैलता जा रहा था। अच्छन अपनी चारपाई पर लुढ़क गई। उसका जी घबरा रहा था। उसे हर तरफ से सफ़ेद नए कपड़ों की खड़खड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। उसका जी चाह रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से रोकर अपने अब्बा की कनात पसंदी का ढंढोरा पीटे, लेकिन उससे रोया भी न गया। आंसुओं का ज़ख़ीरा तो जैसे हलक में ही फंस कर रह गया था। ये था अफसाना चिराग की लो। इस अफसाने में हमारे मुआशरे में वसाइल और पैसे की गैर मुनसिफाना तकसीम की तरफ बात की गई है। देखें, अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब बेचारा इस कदर गरीब होता जा रहा है कि वो 2 वक्त की रोटी को तरसता है। हाजरा मसरूर उर्दू की मुमताज़ और मशहूर अफसाना निगार हैं। उन्होंने अदब की दुनिया में इनकलाब बर कर दिया। तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता रहीं। उनके अफसानों के मौज़ूआत घरेलू मसाइल और औरतों की नफ्सियात से मुतल्लिक हैं। चिराग की लो का मौजू भी मुआशरे के मुतवस्सत तबके की ज़िंदगी के खदोखाल हैं, जहां अमीरों की दौलत तेज़ी से बढ़ती है जबकि गरीब लोग तारीकी की दलदल में धंसते चले जाते हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल नसीब होती है। चिराग की लो इनके अफसानवी मजमूए सब अफसाने मेरे से अखज़ किया गया है।